السلام علیکم دوستوں، میں ہوں امداد اللہ MM کمپیوٹرز پر آپ سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں MS Word 2013 کا لیسن نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے MS Word کو اوپن کرنے کا طریقہ جان لیا تھا، اسی طرح اس کے انٹرفیس کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی تھی، اور آج کی ویڈیو میں ہم MS Word کے فائل مینیو کے تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے MM کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے پاس فائل مینیو، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کے اندر موجود تمام آپشنز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تو دوستو فائل مینیو کے اندر جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ انفو ہے۔ اس آپشن کے اندر ہمارے فائل کے حوالے سے تمام انفارمیشن درج ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس وقت اپنے فائل کے اندر کوئی کام نہیں کیا ہے، ہمارے پاس خالی صفحہ موجود ہے، اس وجہ سے یہاں پر کوئی خاص انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے فائل کے اندر کام کریں گے تو اس حوالے سے تمام انفارمیشن آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہے وہ نیو کا ہے۔ جب ہم نے MS Word کے اندر کوئی نیو ڈاکومنٹ لینا ہو تو اس کے لیے ہم نیو کے آپشن کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو ہمارے سامنے کھل جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک آپشن تو بلینک ڈاکومنٹ کا ہے، اگر آپ کو کوئی خالی صفحہ چاہیے تو اس کے لیے آپ بلینک ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس MS Word کے اندر خالی صفحہ بلینک پیج کھل جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہم اپنے فائل کے اندر پوری کی پوری ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس یہاں پر MS Word کے اندر کافی بنے بنائے ٹیمپلیٹس موجود ہیں۔ ہم ان ٹیمپلیٹس میں سے کسی ایک ٹیمپلیٹ کو منتخب کر کے اس کے اندر تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے اپنے کام کو آسانی کے ساتھ کم وقت میں پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہاں پر اوپر ایک لسٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کسی کیٹیگری کے اندر کوئی ٹیمپلیٹ چاہیے تو آپ اس کیٹیگری پر کلک کریں گے۔ مثلا آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایجوکیشن پر کلک کریں گے تو ایجوکیشن سے متعلق یہاں پر کافی سارے ٹیمپلیٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے آپ اپنے کام کو کم وقت میں آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ نے اپنی مرضی کا کوئی ٹیمپلیٹ تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر سرچ کے خانے میں اس کا نام لکھ کر آسانی کے ساتھ تلاش کر کے اپنے کام کو کم وقت میں پورا کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہمارے پاس اوپن کا ہے، اور پھر اس کے اندر آگے مزید 4 آپشنز ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ ریسنٹ ڈاکومنٹس کا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کام کر کے MS Word کو بند کر دیا ہے اور اب آپ جب دوبارہ یہاں پر آ جائیں گے تو لاسٹ میں آپ نے جن فائلز کو بند کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ سمپلی ان فائلز پر کلک کر کے ان کو MS Word کے اندر اوپن کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم نے چونکہ MS Word کو تازہ انسٹال کیا ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی کام کر کے اس کو سیو نہیں کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر کوئی فائل موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ MS Word کے اندر کام کر کے اس کو سیو کریں گے تو وہ فائلز یہاں پر ریسنٹ ڈاکومنٹس کے اندر آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ اگلا آپشن اس کے اندر ون ڈرائیو کا ہے۔ ون ڈرائیو مائکروسافٹ کا ایک اپلیکیشن ہے، اس کے اندر آپ اپنا ڈیٹا آن لائن اسٹور کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس
माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। जिस तरह कि हम गूगल ड्राइव पर अपना डेटा स्टोर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप वन ड्राइव पर भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने वन ड्राइव पर कोई फाइल रखा हुआ है और आप दोबारा से MS वर्ड के अंदर उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वन ड्राइव के अंदर ले जाएगा और वहां से आप अपने फाइल पर क्लिक करके MS वर्ड के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर का है। अगर आपने किसी फाइल को कंप्यूटर के अंदर सेव कर रखा है और अब उसको आप MS वर्ड के अंदर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट्स का है। क्योंकि जब भी हम MS वर्ड के अंदर कोई फाइल सेव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव हो जाता है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी फाइल को सेव कर रखा है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगा और तब उस पर क्लिक करके आप MS वर्ड के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने डेस्कटॉप के ऊपर अगर किसी फाइल को सेव कर रखा है और अब आप दोबारा से MS वर्ड के अंदर उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे ले जाएगा और फिर वहां से उस फाइल पर क्लिक करके आप उसको MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर के अंदर किसी और मकाम पर किसी और पार्टीशन में किसी फाइल को सेव कर रखा है तो उसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा और फिर आपने कंप्यूटर के अंदर जहां पर उस फाइल को सेव कर रखा है वहां पर जाकर आप उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके पास MS वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास सेव का है। तो दोस्तों, जब आप MS वर्ड के अंदर कोई काम कर लेते हैं और अब उसको आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके अंदर आगे मजीद 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने अपने फाइल को वन ड्राइव पर सेव करना है तो उसके लिए आप वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो आपका फाइल वन ड्राइव पर सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर के अंदर अपने फाइल को सेव करना है तो आप कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे फिर मजीद 2-3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अपने फाइल को डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो जाएगा। या अगर आपने डेस्कटॉप के ऊपर उसको सेव करना है तो उसके लिए आप डेस्कटॉप के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे। या अगर आपने अपने फाइल को कंप्यूटर के अंदर किसी और मकाम पर किसी और पार्टीशन के अंदर सेव करना है तो उसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ये आपको कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा और फिर आपने कंप्यूटर के अंदर जिस भी पार्टीशन के अंदर उस फाइल को सेव करना है आप उस पार्टीशन में चले जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आप अपने फाइल को नाम देके जिस नाम से आप उसको सेव करना चाहते हैं उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है उसी नाम के साथ उसी मकाम पर उसी पार्टीशन के अंदर सेव हो जाएगा। ये तो बात हुई उस सूरत की कि अगर आप किसी फाइल के अंदर पहली मर्तबा काम करके उसको सेव करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने किसी फाइल के अंदर काम करके उसको सेव कर रखा है और अब आपने दोबारा से उसको ओपन करके उसके अंदर मजीद कुछ काम किया है और अब आप चाहते हैं कि मैंने पहले जो काम किया था और पहले मैंने फाइल को जिस मकाम पर जिस नाम से सेव किया था वो वहीं पर रहे और अब मैंने जो नया काम किया है वो किसी और मकाम पर नए नाम के साथ सेव हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम सेव एज के कमांड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये दोनों ऑप्शंस
आ जाते हैं। अगर आपने नए वाले फाइल को वन ड्राइव पर किसी और मकाम पर सेव करना है तो उसके लिए आप वन ड्राइव के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वन ड्राइव के अंदर ले जाएगा और अब आप वहां पर जाकर नए नाम के साथ किसी और फोल्डर के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के अंदर अपने फाइल को दोबारा से नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंप्यूटर के ऑप्शन पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन का आप इंतखाब करेंगे। मसलन अगर आपने कंप्यूटर के अंदर किसी और पार्टीशन के अंदर किसी और मकाम पर उस फाइल को नए नाम के साथ सेव करना है तो आप उस मकाम पर जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप अपने फाइल को नया नाम देंगे। नया नाम देने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरा वाला काम है वो दूसरी जगह पर नए मकाम पर नए नाम के साथ सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास प्रिंट का है। तो अगर आपने MS वर्ड के अंदर कोई काम कर लिया है और अब आप उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास वो प्रिंटर आ रहा होगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा, जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। इस वक्त हमारे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से हमारे पास किसी प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर उसका नाम आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे जितनी भी सेटिंग्स है इनके अंदर आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके फाइल में कई पेजेस है और आप तमाम पेजेस का प्रिंट निकालना नहीं चाहते हैं बल्कि शुरू के 2 या 4 का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उस सूरत में आप यहाँ पर जिस पेज से लेकर जिस पेज तक आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो वो तादाद आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मसलन आप पेज 1 से पेज 5 तक के 5 पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1-5 लिखेंगे तो 1 से लेकर 5 तक के पेजेस का प्रिंट निकल आएगा, जबकि बकिया जो पेजेस है उनका प्रिंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तमाम पेजेस का प्रिंट निकल आए तो उसके लिए आप प्रिंट ऑल पेजेस को ही सेलेक्ट रहने दे, यहाँ पर किसी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है तो आपके तमाम पेजेस का प्रिंट निकल आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि MS वर्ड के अंदर मैंने जो काम किया है वो PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाए, पेपर पर उसका प्रिंट ना आए, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कोई दूसरा प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ही प्रिंटर आ रहा है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई दूसरा प्रिंटर इंस्टॉल है तो डिफॉल्ट तौर पर यहाँ पर उसी का ही नाम आ रहा होगा और आपने इस बटन पर क्लिक करके इस लिस्ट में से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा और अब आपने अपने PDF के फाइल को कंप्यूटर के अंदर जिस मकाम पर जिस पार्टीशन के अंदर सेव करना है आप वहां पर चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप अपने फाइल को नाम देंगे। नाम देने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो कागज पर पेपर पर प्रिंट आउट होने की बजाय PDF के फॉर्मेट में सेव होना शुरू हो जाएगा। अगला ऑप्शन फाइल के मेन्यू में हमारे पास शेयर का है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये लिस्ट खुल जाता है और अब आप इनमें से किसी भी जगह पर अगर अपने फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन का कोई ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम चले जाते हैं अगले ऑप्शन पर। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट का है। इस
ऑप्शन की मदद से हम MS वर्ड के फाइल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर हमने MS वर्ड के फाइल को PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करने के लिए हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमें कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। अब जहाँ पर हमने जिस मकाम पर जिस पार्टीशन के अंदर हमने उस फाइल को सेव करना है उस पर आ जाएंगे। उस पर आने के बाद हम अपने फाइल को नाम देंगे, नाम देने के बाद हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। या बसा औकात ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर लेते हैं और फिर उसको किसी और के पास हम सेंड कर देते हैं प्रिंट निकलवाने के लिए या किसी और काम के लिए हम उसको किसी दूसरे के पास भेज देते हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि उसके पास कोई डाउन वर्जन है तो हमारा जो फाइल है ये उसके कंप्यूटर में ओपन नहीं होगा, हमारा फाइल उसके कंप्यूटर में खुलेगा नहीं। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम दूसरे वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। हम चेंज फाइल टाइप पर क्लिक करके दूसरे वाले ऑप्शन को मुंतखब करके सेव एज पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारा जो फाइल है वो सबसे डाउन वाले वर्जन में सेव हो जाता है। अब अगर हमारा फाइल किसी और भी जगह पर चला जाता है और उसके पास भले कोई डाउन वर्जन ही क्यों न हो तो हमारा फाइल उसके कंप्यूटर में उसके पास MS वर्ड में ओपन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो क्लोज का है। इस ऑप्शन की मदद से हम MS वर्ड के अंदर खुले हुए अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर क्लोज का बटन है, इस बटन पर क्लिक करके हम पूरे के पूरे MS वर्ड को क्लोज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर फाइल के मेन्यू में हमारे पास जो क्लोज का ऑप्शन है ये MS वर्ड को पूरा का पूरा बंद करने के लिए नहीं है, बल्कि MS वर्ड के अंदर हमारा जो फाइल खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। अगले हमारे पास जो दो ऑप्शंस है अकाउंट और ऑप्शंस का, तो इन दोनों का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है, इस वजह से हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं, इन दोनों के ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने MS वर्ड के फाइल मेन्यू के तमाम ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल की। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।